السلام علیکم، میں ہوں لطیف کامران انصاری، آپ دیکھ رہے ہیں حسامی نیوز۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ ساتھ ماہ رمضان میں روزانہ قریب 3000 لوگوں کے گھروں تک پکا ہوا کھانا پہنچانے کا انتظام بھی ہم نے کیا ہے، اور یہ کام بخوبی کامیابی کے ساتھ بخوبی انجام دیا جا رہا ہے، جس کے لیے قابل مبارکباد ہے مجلس اتحاد المسلمین کے کارکن، مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے کارپوریٹر، اور ہماری ایک 5 رکنی ٹیم جو یہاں پر میری قیادت میں جو کام کر رہی ہے، اور اس کام کی نگرانی جناب نور الدین اویسی صاحب کر رہے ہیں، ڈاکٹر نور الدین اویسی، اور ان کے ساتھ جناب نصیر غیاث صاحب ہیں، صمد بن عبداد صاحب ہیں، فہد بن عبداد صاحب ہیں، وہاب صاحب ہیں، اور سعید صاحب ہیں۔ یہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں اناج کے خریدی کے لیے، پھر یہاں تک لانے کا انتظام بھی ان کی ذمہ داری میں ہے، اور پھر یہاں پہ پیکٹس بنانے کا کام بھی انہی کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے، اور اب تک کا 3.5 کروڑ روپے کا صرفہ ہو چکا ہے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے، اور پھر روزانہ یہ 3000 لوگوں کے کھانے کا انتظام ہے، یہ ایک اور اضافہ خرچہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور اب تک کہ ہم نے 4 اپریل کو پہلی وقت ہم نے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں قریب 5000 راشن کے کٹس کی تقسیم کے سلسلے کا آغاز کیا تھا، تو 4 تاریخ سے لے کر آج کی تاریخ تک مسلسل وقتاً فوقتاً ہم اپنی جانب سے کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں جہاں جہاں بھی ہو سکتا ہے وہاں اناج پہنچائیں، اور پھر چندرائن گٹے کے بعد بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے حلقے جات میں بھی ہم کام کریں، اور یاقوت پورے میں ہم نے 1000 بیگز کی تقسیم کی ہے، اور پھر کاروان میں بھی ہم نے کیا ہے، امبر پیٹ میں کیا ہے، پرانا پل ڈویژن جو 4 مینار حلقہ اسمبلی میں وہاں پر بھی کیا ہے، راجندر نگر میں بھی ہم نے کیا ہے، اور پھر ہم نے جھرا کے علاقے میں، اس علاقے میں بھی گوشہ حمیل اسمبلی کانسٹیٹنسی میں بھی کیا ہے، اور اتر پردیش، بہار، مہاراشٹر اور دوسرے علاقوں سے جو لوگ آئے ہیں ان کو بھی گھروں تک پہنچانے کے لیے جناب ماجد حسین صاحب کو ذمہ داری دی تھی، اور ہم کو جہاں کہیں سے بھی بہاری کے ہو یا پھر اتر پردیش کے ہو یا پھر جھارکھنڈ کے ہو یا پھر مہاراشٹر کے ہو، کہیں اگر پھنسے ہوئے ہیں لیبرز ہیں، مائیگرنٹ لیبرز کے لیے، ان کے لیے ماجد صاحب کی نگرانی میں ان کے گھروں تک پہنچانے کا کام وہ بھی جاری ہے۔ 500 راشن کے کٹس ہم بھیجے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اور بھی اگر ضرورت پڑے گی تو اور بھی ہم بھیجتے رہیں گے۔ حلقہ اسمبلی ہم مسلسل بھیجتے آئے ہیں، بھیج رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی بھیجیں گے۔ مشیر آباد میں بھی ہم نے بھیجا، بورا بنڈے میں بھی ہم بھیجے، بیگم پیٹ میں بھی، اور پھر یہ مہیشورم شاہین نگر کے علاقے میں ہم نے اب تک 2000 سے زائد بیگ ہماری جانب سے راشن کے کٹس وہاں پر بھی ہم بھیج چکے ہیں۔ تو بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے مدد کرنے کی، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہماری اتنی کوشش کے باوجود بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں اناج نہیں ہے، بھوکے ہیں، اور ہماری کوشش کے باوجود بھی ہم ان تک نہیں پہنچ سک رہے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری ذات سے یہ اناج پہنچانے کے لیے، اور پھر دوسرے بھی اصحاب جو بھی این جی اوز یا جو بھی دوسرے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بھوکوں تک کھانا پہنچانے کی، میں ان تمام کا بھی ممنون ہوں، مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ بھی
बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये हालात ऐसे हैं कि इन हालात में हमको सबको मिलकर एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। जो भी कोशिश हो रही है मरकज़ी हुकूमत की जानिब से भी हो रही है, रियासती हुकूमत की जानिब से भी हो रही है, कई NGOs भी कर रहे हैं और हम हमारी जानिब से भी हम कर रहे हैं। तो जितना हो सकता है करना है और हमको एक दूसरे पर तनकीद नहीं करना है या इल्ज़ाम नहीं लगाना है, बल्कि एक दूसरे की मदद करने का वक्त है। मैं ये समझता हूँ कि मेरा अखलाक़ी फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं सबका शुक्रिया अदा करूँ जो लोग जो ऐसे वक्त में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, सारे लोगों का, सारे NGOs का, सारी तंजीमों का और सफाई के अमले का, और उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि डॉक्टर्स का और फिर नर्सिंग स्टाफ का, फिर दूसरे लोगों का जो भी काम कर रहे हैं। बिलखुसूस मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, गांधी हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ, गांधी हॉस्पिटल के दूसरे क्लास 4 के एम्प्लॉइज़ और वहाँ के जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं, उन सब का, ये सारे लोगों की कोशिश है। और उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि बाज़ जगहों पे शिकायत है ज़रूर, थोड़ी सी गलतियाँ हो रही हैं, इंसान बशर है, हमसे भी हो रही हैं गलतियाँ, दूसरों से भी हो रही होगी, लेकिन पुलिस भी काम कर रही है, सुबह से शाम तक कोशिश कर रही है। और सारे लोगों की कोशिश क्या है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आशा वर्कर्स हो, चाहे वो NGOs हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हुकूमतें हों, सबकी कोशिश ये है कि परेशान हाल लोगों की मदद हो, भूखों की मदद हो और जो मुसीबत में हैं उनकी मदद हो। तो हर कोई अपनी जानिब से कोशिश कर रहा है और हर कोई काबिल मुबारकबाद है। अवामी नुमाइंदे भी अपनी तौर से जो भी हो सकता है कर रहे हैं, वुज़रा भी कर रहे हैं और मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त ऐसा है कि हम सबको मिलकर करना है। और मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि अगर मेरे काम में कहीं पर कोई ख़ामी है, कोई कमज़ोरी है जिसको दूर किया जा सकता है, तो ज़रूर मुझ पर भी तनक़ीद करें, मैं तनक़ीद को कबूल करने तैयार हूँ, क्योंकि मेरी नीयत, मेरा मकसद ये है कि कुछ काम हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि इस काम में आप सबका भी ताउन इसी तरीके से रहेगा। काबिल मुबारकबाद है रियासती हुकूमत जो गच्ची बौली में एक 1500 बिस्तर का दवाखाना बनाए हैं, इसके लिए भी मैं मुबारकबादी देता हूँ हेल्थ मिनिस्टर ईटला राजेंद्र साहब को कि बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक हॉस्पिटल को बनाना कोई आसान नहीं है। हम भी ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस में एक 250 बिस्तर का एक अलहदा दवाखाना कह रहा हूँ मैं, 250 बिस्तर का अलहदा ओवैसी हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक दूसरी बिल्डिंग में हमने बनाया है। तो मैं जानता हूँ कि ये हॉस्पिटल को बनाना कोई आसान काम नहीं है। हम 250 बिस्तर का बनाए हैं और कितनी तकालीफ हुई है हम जानते हैं। तो 1500 का दवाखाना बनाना है, काबिल मुबारकबाद है। मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी देता हूँ और चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है। और हमने भी हमारे ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस में ओवैसी सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़ का नाम दिया है, OSID, ओवैसी सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़, जहाँ पे 250 बिस्तर का इंतज़ाम है और 20 इंटेंसिव केयर बेड्स हैं, ऑक्सीजन के साथ, वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ, मॉनिटर्स के साथ। और उसके साथ ही साथ हमने वहाँ पे क्रिएट किया है एक 7 बेड्स डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए भी, एक अगर डायलिसिस होता है। और उसके साथ ही साथ मोर देन 200 क्वारंटीन के बेड्स भी हमने वहाँ पे क्रिएट करने में कामयाब हुए हैं। और फिर उसके साथ ही साथ वहाँ पे CT स्कैन भी है, अलहदा CT स्कैन, ओवैसी हॉस्पिटल का CT स्कैन नहीं बल्कि ये OSID ब्लॉक जो हम बनाए हैं, ओवैसी सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़ जो बनाए हैं, वहाँ पे एक CT स्कैन भी है। और फिर वहाँ पे एक्सरे मशीन्स भी है, नर्सिंग स्टाफ है। रोज़ाना हम
डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये वबा अगर फैलती है उसके बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारे बेड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो हम भी अपने तौर से तैयार रहने के लिए कोशिश करते हुए ये एहतमाम करे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे पास RT-PCR एक मशीन होता है जिसके ज़रिए ये टेस्ट किया जाता है और इसके लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होते हैं। तो हमारा जो वायरोलॉजी का लैब है, जो RT-PCR है, ये लेवल 3 का है। तो इंशाल्लाह हम इसके परमिशन के लिए भी अप्लाई करेंगे और उसके बाद में जब परमिशन आएगा तो इंशाल्लाह हम टेस्ट करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो लैब है PCR मशीन जो है इसमें हम दिन में 250 टेस्ट कर सकते हैं दिन में और ये रिपोर्ट्स हम 3 घंटे में दे सकते हैं। ऐसा हमारा इक्विपमेंट है। तो इंशाल्लाह जैसे इसके लिए हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिलेगी तो इंशाल्लाह और ज़रूरत महसूस होगी तो हम ये करेंगे, क्योंकि आने वाले दौर में ज़रूर हमको जो भी पेशेंट को दवाखाने में लेना होगा तो हमको ये टेस्ट करने के बाद लेना पड़ेगा। तो ये भी एक ज़रूरी है, क्योंकि हमारे OPs अब बंद हैं। अब OPs को अगर रीस्टार्ट करेंगे तो हमको हमारे डॉक्टर्स की जान की भी हिफाजत करनी है, हमारे इक्विपमेंट को भी बचाना है इस बीमारी से, वायरस से, हमारे हॉस्पिटल को भी बचाना है और उसके साथ ही साथ बीमारों को भी इलाज का इंतज़ाम करना है। क्योंकि कई बीमार लोग हैं जो आज इलाज से महरूम हैं कि उनका इलाज नहीं कर सक रहे हैं कि इस डर और खौफ से कि कहीं इनको ये कोरोना वायरस अगर होगा तो दूसरों को लग जाएगा, कहकर नहीं इलाज कर रहे हैं। तो हम उसके लिए भी हमारे हॉस्पिटल में एक अलग ट्रायज का एरिया बनाएं जहाँ पे 12 बेड्स रखेंगे हम। जो भी पेशेंट आएगा तो वहाँ पे हम उनको एडमिट कर कर उनका स्वाब लेंगे, उनका टेस्ट करेंगे और उसके बाद में अगर वो नेगेटिव पाए जाते हैं तो जब हम उनको हॉस्पिटल में लेकर उनकी सर्जरी करेंगे, उनका जो भी इलाज है करेंगे। क्योंकि अगर हम उनको दवाखाने में ले लेते हैं और उनका इलाज करते हैं और बाद में अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो जिस डॉक्टर ने उनका इलाज किया वो भी मुतासिर होगा, नर्स भी मुतासिर होगी, दवाखाना भी वायरस में आएगा और बेड्स भी आएंगे, वो इक्विपमेंट जिसमें हम टेस्ट करे हैं वो भी मुतासिर होगा। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे इंतज़ामात होने के बाद जल्द अज जल्द हम हमारे OPs को हमारे दोनों हॉस्पिटल में स्टार्ट करें और उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही आजमाइश का वक्त है, बड़ा ही नाजुक वक्त है और ऐसा वक्त है जो सारी दुनिया को एक मुकाम पे रोक दिया है और दुनिया पूरी रुकी हुई है। और आज हम लड़ रहे हैं तो इस बीमारी को, इस वायरस को शिकस्त देने के लिए, लेकिन जब हम इस वायरस को शिकस्त दे देंगे तो उसके बाद में हमको लड़ना होगा अपनी इकोनॉमी को सही करने के लिए, जीने के लिए। कई ऐसे चैलेंजेस आने वाले हैं आने वाले कल में, जिसके लिए हमको, आपको, सबको तैयार रहना है। तो आज हम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे में फिर से करीब 4000 राशन के किट्स और 3000 पके हुए खाने के पैकेट्स की तकसीम कर रहे हैं। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल करे और हमारे इस काम को कबूल करे। और अल्लाह से दुआ है कि ये वायरस से लड़ने के लिए जितने भी लोग, जो कोई भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, अल्लाह इन सब की खिदमत को कबूल करे। और बिलखुसूस मैं दुआ करता हूँ, सबसे अहम रोल इस वक्त है तो डॉक्टर्स का है। मैं आवाम से भी अपील करूँगा कि ये डॉक्टर्स के इस वक्त की खिदमत को समझें। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त के जो रियल हीरोज़ हैं तो वो डॉक्टर्स हैं, वो नर्सिंग स्टाफ है और फिर उनके साथ जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं ये लोग हैं। तो हमको इनके लिए जितना भी उठकर इनकी तारीफ़ करें, इनकी तायीद करें, मैं समझता हूँ कि कम है। तो आज ये जो काम हो रहा है इसके लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको एक दूसरे की मदद करने की तौफ़ीक़ दे, हिदायत दे। और माह रमज़ान में अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ और सारे रोज़ेदारों से भी अपील करता हूँ कि आप तमाम भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्द अज जल्द हमको, इंसानियत को इस बीमारी से नजात दे
اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ لوگ جو بھوکے ہیں ان کے گھروں تک اناج کو پہنچانے کا اللہ انتظام کروائے۔ ہم جیسے لوگوں سے اللہ جو کام لے رہا ہے اللہ اس کام کو قبول کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سارے لوگوں کو جو آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں اللہ ان کی ساری خدمات کو قبول کرے۔ ہماری ذات سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، مگر